हमारे बॉडी में जो भी डिजीजेस पैदा होते हैं इट कम्स फ्रॉम योर गट. पीपल थिंक दैट अगर एक बार डाइट प्लान मिल गया और मैं पूरा जीवन ये फॉलो करूंगी तो मैं हर हफ्ता 1 किलो या 1.5 kg वेट लॉस करूंगी. दैट्स एक्चुअली आयरॉनिक बिकॉज बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए और कुछ लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काम नहीं करता. तो ये डाइट कितना अच्छा है. this actor called Ram Kapoor, he lost 40 kgs second time. He was currently doing only 2 meal a day. एक वेट लॉस जो किया है उसको मेंटेन कैसे कर सकता है. व्हाट एग्जैक्टली इज बायो हैकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट. तो ब्रायन जॉनसन वो अभी 55 इयर्स के हैं एंड उन्होंने ये सारे बायो हैक्स करके करंटली हिज एज इज ऑफ 25 ईयर ओल्ड. उन्होंने खुद के सन का ब्लड अपने में इंजेक्ट किया है. स्ट्रेस लेवल्स की वजह से फूड अब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस आता है. स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज. तो मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट कर सकते हैं. फ्यू इजी टिप्स मैं दे सकती हूँ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए. इंडिया में हम कंसिडर करते हैं कि गैस होना, डकार होना इज वेरी नॉर्मल. द गट लाइनिंग इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर द सिम्टम्स दैट द बॉडी शो. याकुल्ट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. इट इज बैड फॉर योर हेल्थ. व्हाई? मैं जानना चाहती हूँ कि आप यूजुअली आपके क्लाइंट्स को या कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उनको अप्रोच कैसे करते हो आप. So when we talk about other clinical related issues, so say for example when a client comes to me with thyroid or elevated cholesterol or basically any heart related issues, so their diagnosis, their diet pattern and their clinical analysis will be different versus someone who's come to me just for weight loss or weight gain or fat loss or gaining muscle mass. So talking about a normal case in which it's just a weight loss, right? So we understand their body analysis. We understand through BMI machine, wherein we understand that fat percentage, muscle percentage, things like that. Yeah. Apart from just their normal history. बेसिकली बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करने के बाद उनका हिस्ट्री एज इन क्या डाइट लेते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, ऑल दोज थिंग्स एंड Everything. Is there like a family history also involved in terms of obesity? Yes, we usually do ask people if, especially females, if they have had any history of thyroid, PCOS, irregular periods, things like that. So once that entire body analysis composition is done, then we do take their entire food history, the medical history. And with that, we then explain them. Because for every individual, the amount of nutrients, calories, micronutrients varies. So for every individual, it will be personalized, it will be custom made for them. Okay. Now, where most of the people go wrong is just not doing the diet. So people think that अगर एक बार डाइट प्लान मिल गया डाइटिशियन से तो वो पूरा फैमिली वही फॉलो करेगा और मैं पूरा जीवन ये फॉलो करूँगी तो मैं हर हफ्ता 1 किलो या 1.5 kg वेट लॉस करूँगी. But that's actually ironic because you need to change your diet plan every 10 to 12 days. Every 2 weeks, your body will get used to the particular pattern that you're following. So you can't follow one thing, and obviously that one thing will not give you the same effect for us if you follow it for a prolonged time. Exactly. पूरी फैमिली को एक डाइट फॉलो करना is even more difficult because सबका टेस्ट अलग है definitely. Exactly. And one person के लिए सब लोग adjust नहीं करेंगे no matter how healthy your diet plan. I mean, see, I do have a lot of families that enroll with me together over a particular diet plan. So the पूरा pressure mother पे जाने वाला है. You know, the kids like you and me will go to work, we come back, we go to the gym, things like that. The parents, the dads might not be very helpful in the kitchen. So the first thing that the mother tells me, हीरा ऐसा diet plan दो जो so मुझे overwhelming ना हो. I don't have to do multiple things. So we are able to kind of tackle that. Say for example, the husband has a more muscle gain kind of routine. So only the protein part of it increases. Whereas if the mother is on a weight loss journey, so calorie restriction होता है. So it is possible to have a family diet plan wherein only one kind of food is cooked at home, but the micronutrients will be varied. तो अगर हम ये ऐसे डाइट फॉलो करते हैं तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं. लाइक ब्रीफ लाइक अगर दाल रोटी खा रहे हैं जी तो उसमें कार्ब्स भी आ जाएंगे, फिर लेंटिल्स की वजह से थोड़ा फाइबर और प्रोटीन भी आ जाएगा. बट दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे क्योंकि अलग से एक आई थिंक एक स्पेशल डिश तो बनानी ही पड़ेगी किसी और के लिए. तो ऐसा कुछ something in the middle, how can we inculcate that? Okay, so just this is just a scenario. एक family आया है, family of 3, and everyone is asked to do a particular diet. So for example, like I said, the mother is on a weight loss plan, and her muscle mass doesn't require to be more bulkier. Okay. So she can have little less of
paneer, or if she's a vegetarian. So say for example, her thali for lunch will look more like one roti, one big cup of salad, one big cup of sabzi, and 75 grams or 100 grams of sauteed paneer or any paneer or lentil preparation. Okay. Whereas if, say for example, the similar thing for a husband will be 2 chapatis, 150 gram of paneer or any lentil, 1 cup of salad, 1 cup of sabzi. It will be that easy. So it's easier for people to prepare. And basically they're eating the same thing but in different quantities. Correct. डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंदर जाता है. तो बचपन से आई थिंक स्कूल में हम लोगों को सिखाते हैं कि वी शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट, बट एक्चुअली बैलेंस डाइट क्या है वो तो पता ही नहीं है किसी को. तो एज ए न्यूट्रिशन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए. व्हाट कंप्राइजेस ऑफ अ बैलेंस डाइट? Okay. So firstly, in India, we have been eating balanced diet throughout our lives. Just that there is so much influence from the Western culture. There is so much talks and nuances about keto diet हो गया या फिर intermittent fasting हो गया. ये सारी चीज़ें intermittent fasting हम करते आ रहे हैं. जैनिज्म जो होता है उसमें वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करता है. वो 6 बजे या सनसेट के बाद खाना नहीं खाता. हाँ. तो हमारी जो इंडियन डाइट है इन जनरल बहुत ही बैलेंस्ड है. कैसे मैं आपको बताती हूँ. सो आई ऑलवेज से दैट आपके जो हाथ है, आपके 5 फिंगर्स है, दे आर ऑल योर पैरामीटर्स फॉर योर बैलेंस डाइट. ओके. सो द फर्स्ट वन इज योर कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमें मिलता है रोटी, राइस, गेहूँ, पराठा, व्हाटएवर, एनी पल्स, लेंटिल बेसिक. ओके. सॉरी, एनी ग्रेन. ग्रेट. सेकेंड इज योर प्रोटीन. प्रोटीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज से मिलता है. अंडा हो गया, फिश हो गई, चिकन हो गया, या फिर पल्सेस से मिलता है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं. मूंग दाल, मूंग, मट, चना, राजमा, छोले एक्सेट्रा इज योर प्रोटीन. थर्ड इज यू वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर, जो हमें सब्जी से मिलता है, कच्ची सब्जी, पकी हुई सब्जी. द फोर्थ वन आर योर फैट्स, हेल्दी फैट्स जिसको बोलता है, जो हमें ग्राउंडनट से मिलता है, राइट, जो हमें सीड्स से मिलता है, तिल सीड्स, सेसमे सीड्स, अलसी, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वैसे. एंड लास्ट इज अवर मिनरल्स, जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है. सो दीज आर ऑल बैलेंस मील. ये सारी अगर चीज़ें आप रोज एक एक लेंगे, दैट विल कंप्राइज ऑफ अ बैलेंस मील फॉर यू. ओके. तो हम एक एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा जाएंगे. हर चीज़ को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए, मतलब कच्चा पक्का, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो पकाने के बाद उसकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कम हो जाती है. तो स्टार्ट ऑफ विथ आई थिंक कार्ब्स, बिकॉज कार्ब्स को ना बहुत ज़्यादा डिपेंड एक्चुअली के नहीं, कार्ब्स नहीं खाने चाहिए. एंड ऑब्वियसली आई थिंक देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कार्ब, गुड कार्ब्स एंड बैड. बैड कार्ब्स में तो सबको पता है कि शुगर है, वाइट ब्रेड, मैदा, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स, ऑल दोज थिंग्स आर बैड कार्ब्स. गुड कार्ब्स में क्या क्या आ सकता है और किस फॉर्म में ले सकते हैं टू गेट द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट? ओके. सो लाइक यू राइटली सेड, कार्ब्स को हम सब ने विलन बना दिया है. नो कार्ब डाइट, कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, मोटे हो, पतले होना है तो रोटी छोड़नी पड़ेगी. बहुत मैं सुनती आ रही हूँ, इवन मेरे क्लाइंट्स जो आता है, प्लीज़ मुझे रोटी खाने देना ही ना, मुझे रोटी चावल बहुत पसंद. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय रिएक्शन. आई रियली लव, बिकॉज ऑनेस्टली कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरीके होते हैं जैसे आपने बताया. एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो हमें मिलता है मिलेट से. अगेन इन इंडिया हम हमारी कल्चर के हिसाब से अगर विंटर्स होता है तो गुजरात में लोग बाजरा प्रेफर करते हैं, पंजाब में दे हैव मक्के की रोटी. सो दीज आर नथिंग बट मिलेट्स. ओके. राइट. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गया. अभी सिंपल कार्ब्स जो कि नॉट सो गुड कार्ब्स हो गए, जो हमारी बॉडी में बहुत सिंपली डाइजेस्ट हो जाता है. और उससे हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है. तो वो हो गया एनीथिंग दैट्स वाइट, बेसिकली मैदा, ऑल पर्पस फ्लार हो गया, राइट. एनीथिंग दैट्स सम ब्रेड्स दैट आर हैव अ लॉट ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड, वो हो गए सिंपल कार्ब्स. अभी कैसे खाना चाहिए? सो बेसिकली आई ऑलवेज सजेस्ट माय क्लाइंट्स कि अगर आप मील कभी भी खाते हो, रोटी इन टर्म्स ऑफ लंच या डिनर, प्लीज़ खाइए. अगेन द क्वांटिटी वेरीज फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक जन की क्वांटिटी अलग होगी. सो जब भी आप कार्ब्स खा रहे हो, हमेशा एक कच्चा वेजिटेबल, कोई भी एक रॉ सैलेड पहले खाइए. हम क्या करते हैं इंडियन कल्चर में, हम रोटी का एक बाइट लेते हैं, रोटी सब्जी का, और उसके साथ एक ककड़ी का बाइट लेते हैं. दैट्स हाउ टिपिकली वी ईट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ईट योर फाइबर फर्स्ट, जब आप फाइबर पहले खाते हो, आपकी स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स में वो फाइबर कोट हो जाता है. ओके. सो इट डजंट अलाउ दैट ग्लूकोज टू स्पाइक एज मच एज जब आप डायरेक्टली रोटी या कोई भी कार्बोहाइड्रेट इनटेक करोगे. ओके. सो दैट्स द बेस्ट वे. ये सबसे बढ़िया तरीका है टू ईट योर
fibers, Hmm. again in a very restricted quantity as per what your goal is. ओके आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फाइबर हम शायद थोड़े नट्स भी ले सकते हैं बिफोर मीट. यस, नट्स हमेशा मिड मील्स के तरीके पे यूज़ होना चाहिए, नॉट मेजर मील्स में. जैसे कि लंच या डिनर में नट्स नहीं ले सकते. सिमिलरली फ्रूट्स आप मेजर मील में मत लीजिए. वेजिटेबल लीजिए फॉर फाइबर, जैसे ककड़ी, टमाटर, प्याज, मूली, व्हाटएवर. लाइक ऑन बेसिक सैलड. बेसिक Very- कोई भी एक ककड़ी भी चलेगी. ऐसा नहीं कि 2-3 सॉटे बेल पेपर, ब्रोकली. One simple cucumber is also going to be fine. ओके Nuts are great if you have it empty stomach. First thing in the morning अगर आप soaked करके पील करके 5 बादाम 2 अखरोट लेंगे, it's great for everyone. Again it's good for mid morning snack, mid evening snack. ओके एक फ्रूट के साथ या फिर एक कप ऑफ ग्रीक योगर्ट, दही, बटर मिल्क के साथ. तो आई थिंक सोक करके नहीं रखेंगे तो भी चलेगा बिकॉज कुछ लोग फिर आलसी हो जाती हैं यार सोक नहीं किया अब मैं नहीं खाऊं. Yeah. तो इज देयर अ डिफरेंस कि सोक करने से कुछ ज़्यादा फायदा होगा या इज देयर और इज इट द सेम. Okay, very good question. So again, the benefits of soaking and peeling and having these nuts, ये है कि अगर उसमें कोई भी टॉक्सिन्स रहते हैं या फिर कभी कभी किसी का गट इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि विद दैट स्किन वो नट डाइजेस्ट कर पाते हैं. हमें नहीं पता लगता है. इंडिया में हम कंसिडर करते हैं कि गैस होना, डकार होना इज़ वेरी नॉर्मल, बट समटाइम्स पीपल आर their gut is not very strong, the gut lining is not very strong, and these are the symptoms that the body is showing. ओके So सुबह खा रहे हो तो सोक करके खाओ. अगर पूरे दिन में खा रहे हो तो नॉन सोक भी चलेंगे बिकॉज वो एम्प्टी स्टमक नहीं ले रहे हो. अच्छा. So your gut has some kind of acids and fluids to digest it. And what about protein? Also protein में one thing that I want to consider is that हमें sources of protein पता है जी. but some people like who have a lot of high uric acid levels. Yeah. I see a lot of patients like that कि हाई यूरिक एसिड है तो मैं प्रोटीन नहीं खाता. तो उनको एक्चुअली मसल गेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. करेक्ट. तो उनके केसेस में हम कैसे प्रोटीन को इनकलकेट कर सकते हैं डाइट में Okay. एंड हाउ मच कैन वी डू दैट. Okay. So see again depending on the amount of uric acid a particular individual has, अगर उनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है किडनी स्टोन्स की, खुद की भी हिस्ट्री नहीं है किडनी स्टोन की, तो वो प्रोटीन दिन में डेफिनेटली 0.5 to 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले सकते हैं. तो से फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट है 50 kgs, अगर आपको कोई और किडनी स्टोन की वो नहीं है, इशू नहीं है, और अगर आप अभी यूरिक एसिड की दवाई पे नहीं हो, ठीक है, तो आप 45 to 50 ग्राम्स प्रोटीन पर डे इस्तेमाल कर सकते हो. बट ये पेशेंट्स को, ये क्लाइंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई एक्सटर्नल प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. ओके. उनको 50 ग्राम प्रोटीन इवन वेजिटेरियन खाने से, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से मिल जाएगा. तो अगर मैं एक बोल मूंग खाती हूँ तो उसमें मुझे कितना प्रोटीन मिलेगा? One bowl is 350 grams, right? So 350 grams will, 1 cup of moong will easily give you 7.5. That's 150 grams will give you 7.5 to 8 grams. One very interesting thing is अगर आप मूंग को स्प्राउट करते हो, हम हिंदी में बोलते हैं मटकी, राइट? तो मटकी अगर करते हो तो उसका 2x to 2.5x प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है. तो प्रोटीन एंड अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी मेडिकल कंडीशन तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए और किस फॉर्म में बेस्ट रहेगा? Okay, so again here there are two ways in which I would like to explain. अगर आप वेट, आपका आइडियल वेट है, ठीक है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रहेंगे जिनका आइडियल वेट है वो मसल गेन कर रहे हैं, स्पेशली द यंग मैन. सो देयर इफ दे आर लिफ्टिंग वेट्स तो उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट शुड बी इजीली 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. ओके. So if their body weight is 75 kgs, they can go up to 100 grams also in a day. But provided they exercise. Providing they are exercising, yes. Then only it will help them bulk up the muscle even faster. Okay. जल्दी उनको difference दिखेगा उनकी body में. Muscle gain होगा. Okay. Rather than taking whey protein, ये better option है. Yeah. See, they can definitely take protein powder. Protein powder is a good. एक protein powder के scoop में उनको 25 grams protein मिल जाएगा. Which should, I honestly feel people should have protein powder if they're working out. 1 scoop after the workouts in a glass of water. Okay. एंड अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आई थिंक बहुत सारे लोग IT प्रोफेशनल जो है उनको आइडियली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए दिन में? 1 gram per kg body weight, irrespective if you're working out or not working out, if you're a male or a female. अब सबको 1 ग्राम प्रोटीन आपके जितना भी आपका वेट है उसके हिसाब से लेना चाहिए. तो अगर आपका 50 kgs वेट है, 50 ग्राम प्रोटीन, 60 kgs वेट है, 60 ग्राम्स प्रोटीन. ओके.
That's easy catch. Yeah, that's a easy catch. Is there a measure like this for other macronutrients as well? Okay, so for other micronutrients there are not such calculation specifically, but मैं आपको एक अंदाजन बता सकती हूँ कि as per ICMR Indian law how much is our requirement for fiber proteins. फाइबर हमारे दिन में होना चाहिए between 15 to 20 grams पूरे दिन में, Okay. जो हमें नॉर्मल इंडियन सब्जी रोटी से मिल जाता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स अगेन इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट आइडियली वी डोंट रिक्वायर मोर देन 2 chapatis of carbs in a particular meal. Okay. In one meal. In one meal, Okay. right? And then talking about fats, हमें पूरे दिन में not more than 2 tablespoons of oil या घी इस्तेमाल करना चाहिए, and that is where we all go wrong, including me. I think वो पूरा बैलेंस डाइट का इम्बैलेंस ही फैट के वजह से या ऑयल की वजह से हो जाता है. Correct. Okay. I think then we'll come to minerals and vitamins. नाउ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हमारे बॉडी में 12 वाइटामिन्स असेंशियल होता है, उनकी सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है. बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो हमारी बॉडी में विटामिन सी जो है, हमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है आंवला से, यू नो, वर्सेस कॉन्ट्री टू बिलीव कि हमें ऑरेंज से मिलता है, लेमन से मिलता है. तो हमारी बॉडी में अगर हम रोज़ एक आंवला खाता है तो हमें 2 दिन का विटामिन सी मिल जाएगा. Okay. सो दैट्स हाउ, जस्ट वेरी सिंपल बेसिक एक्सप्लेनेशन कि कितना रिक्वायरमेंट है. Okay. तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की भी ज़रूरत. एंड फ्रूट्स आई थिंक फ्रूट्स हम लोग बहुत एडवांटेज में ले लेते हैं. हाँ. फ्रूट्स तो हेल्दी है तो हम खा लेते हैं, बट आई थिंक सब फ्रूट्स इतने अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए. करेक्ट. तो कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे और कौन से नहीं अवॉइड करने चाहिए? Okay. Again, fruits is something that I advocate people a lot कि आपको ज़्यादा खाने चाहिए. Now there is nothing like a good fruit, bad fruit. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे थायराइड है, मुझे ये है, तो मैं कौन सा फ्रूट नहीं खाऊं. तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं खाना, आपको सारी चीज़ें मॉडरेशन में खानी है. बट फ्रूट स्पेशली की टाइमिंग है जब आपको खाना है, नहीं खाना. जैसे मैंने पहले बताया कि आपको वो मेजर मील्स में नहीं लेना. कभी कभी हम फ्रूट कस्टर्ड लेते हैं डेजर्ट्स के साथ, राइट. कभी कभी फ्रूट सैलेड लेते हैं. आई सी सो मेनी पीपल इन रेस्टोरेंट्स इवन ऑर्डरिंग पाइनएप्पल रायता, स्पेशली इन द नदर्न इंडिया. ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट. फ्रूट्स को हम मेजर मील्स में नहीं लेते. उसका रीज़न है साइंटिफिकली कि वो ऑलरेडी HCl में बहुत हाई होता है, एंड आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ लॉट व्हेन इट्स गोइंग टू डाइजेस्ट द फूड. तो वो एसिड होके इट्स गोइंग टू क्रिएट अ रक्कस. तो उससे बेटर है फ्रूट को आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में लो. ट्राई टू फिनिश हैविंग फ्रूट्स बिफोर 5 PM. ओके. या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में लीजिए 11 साढ़े 11 के बीच में, या फिर मिड इवनिंग स्नैक में लीजिए. से फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हो तो आप एक छोटा बनाना विथ 5 नट्स खा के जा रहे हो. दैट्स ईजियर ऑल्सो फॉर पीपल टू ईट. तो अभी बैलेंस डाइट हो गया. नाउ आई थिंक मोर देन अवेयरनेस, अभी इंटरनेट पे ट्रेंड्स के हिसाब से लोग डाइट ज़्यादा फॉलो करते हैं. और अभी रिसेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हाउ डज इट हेल्प, हाउ व्हाट हैपेंस इन द बॉडी के उससे रिजल्ट्स आते हैं. और कुछ लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काम नहीं करता. तो व्हाट ऑल हैपेंस आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो इन द बॉडी? Okay. So firstly, I am a big promoter of intermittent fasting. I personally do intermittent fasting, and it's just not about the results that it gives physically, like it tones your body, it helps you lose weight, but the way that you feel after doing intermittent fasting for just 3 weeks is phenomenal. It makes you feel more lighter. आपकी energy बहुत ज़्यादा high होती है. Naturally your hormones are balanced, especially for females. So your mood will be always, you'll be very happy. Irrespective of the phase of your cycle. Irrespective of the phase of your cycle, yes. Because naturally the estrogen progesterone का balance हो जाता है once you start and do this for at least 3 weeks. 3 weeks is the time आपकी body को लगता है वो चीज़ को adapt करने में और पूरा function को used to होने में. Okay. So there is a lot of trend, yes, about intermittent fasting, but intermittent fasting के बहुत सारे do's and don'ts होते हैं. तो उसके बारे में बात करते हैं. It's very scientific. When you eat, जब आप खाते हो सूरज उगने पर और सूरज के ढलने पर, उसका रीज़न है कि आपका सर्कैडियन रिदम जो है बॉडी का वो नेचुरली स्टेबल हो जाएगा. राइट. इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूजुअली लोग 16 घंटे फास्ट करता है और 8 घंटे खाना खाता है. तो सबसे बड़ा मिथ है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लेकर, बहुत सारे मुझे DMs भी आते हैं कि
मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई स्पेसिफिक आवर में ही करना चाहिए. से फॉर एग्जांपल अगर मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे, हाँ तो मुझे वो 7 बजे ख़त्म करना है, तो यही एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है. सो द आंसर इज़ नो. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके रूटीन के हिसाब से कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल आप एक नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, राइट, तो आपका ईटिंग आवर स्लीपिंग आवर बहुत डिफरेंट रहेगा वर्सेस टू अ पर्सन हु इज डूइंग नॉर्मल शिफ्ट. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कोई भी आवर में कर सकते हो, नंबर 1. नंबर 2, ट्राई करो कि आप रोज़ हर जो मील ले रहे हो फास्टिंग में, मे बी 2 मेजर मील्स लेते हैं या फिर एक व्हाटएवर इज योर मील पैटर्न, सेम टाइम पे ही लो. सो से फॉर एग्जांपल अगर आप 1 बजे फास्ट स्टार्ट करते हो, यू स्किप योर ब्रेकफास्ट मिड मॉर्निंग एंड यू स्टार्ट योर लंच. एवरी डे ट्राई टू स्टिक टू दैट 1 PM का टाइम ओनली. 5-10 मिनट इधर उधर हुआ दैट्स फाइन, बट ट्राई टू हैव दैट पैटर्न. And in intermittent fasting again, try to not eat anything after the eating window. But बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ड्रिंक कर सकते हो फास्टिंग विंडो में भी, ओके लाइक ग्रीन टी, वाटर, एनी हर्बल टी, इवन ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी. ओके ये आप आपके फास्टिंग विंडो में पी सकते हो बिकॉज इट इज़ नो कैलोरी, इट इज़ जस्ट इन्फ्यूज्ड वाटर. ओके. इससे कुछ फ़ायदा होता है, मतलब इससे मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, ऐसा कुछ है? सी स्टेइंग हाइड्रेटेड इज गुड. बहुत सारे लोग होते हैं जो पानी भी नहीं पीते आफ्टर इन देयर फास्टिंग विंडो, सो इट हेल्प्स मोस्ट ऑफ देम, बट फ्यू ऑफ देम डू गेट गट रिलेटेड इश्यूज बिकॉज हमारी बॉडी को इतना फास्टिंग की हैबिट नहीं है. ऑब्वियसली. Yeah, so it does increase your metabolism. Again, black tea, green tea, black coffee will suppress your hunger up to a certain amount of time. What about one meal a day diet? I think that is also one thing. Yeah. My husband, he did a 1 meal a day diet How? for 3 months. He lost around 20 kgs, and then again after like a few months he could not do it because obviously it's not a sustainable diet. You can't follow it for your whole life. So he gained again. तो ये डाइट कितना अच्छा है और उसके बाद रुकने के बाद वेट गेन वापस कैसे नहीं होना चाहिए? Okay. See, okay, so like you rightly said, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है. और ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो इट्स सस्टेनेबल until unless you decide that that's your way of life. आपकी ये लाइफस्टाइल है कि आप यही फॉलो करो. अभी जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है वो है 2 meal डाइट. ओके. 2 meal in an entire day. I don't know अगर आपने देखा रहेगा, this actor called Ram Kapoor, he lost 45 Yeah, kgs yeah. second time Yeah. in the tenure of 10-15 years. So he was currently doing only 2 meal a day in intermittent fasting. तो वो 8 ही घंटा खाना खाते थे, उसमें से भी वो 2 ही मील लेता है. तो आपने आपके हस्बैंड का एग्जांपल दिया, तो अभी मैं मेरे हस्बैंड का एग्जांपल देती हूँ. So he currently is on intermittent fasting. Okay. He's lost 35 kgs before we got married, and he's maintained that weight for the last 5-6 years now. Oh, that's great. Yeah, and he only eats twice a day. And मुझे बहुत डांट पड़ती है, सब मुझे बोलते हैं आपकी वजह से ये नहीं खा रहा है, but that's absolutely not true. He is so much into fitness that he only, he's like, this is what I want to eat, this is how I'll eat, and this much is what I'm going to eat. So I think वेट लॉस से ज़्यादा वेट लॉस के बाद का जो मेंटेनेंस है ये वो ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डाइट यू फॉलो, Yeah. एक वेट लॉस जो किया है उसको मेंटेन कैसे कर सकता है कोई इंसान? Yeah, that's a very very important thing. मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स को who have lost more than 10 kgs, please do a maintenance diet. उसका रीज़न है losing weight. वेट लॉस करना बहुत आसान चीज़ है, जेन्युइनली बहुत आसान चीज़ है अगर आप आपका माइंड बना लेते हो. मेंटेनिंग वेट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. उसका रीज़न है जब आप मेंटेनेंस डाइट करते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपके वेट मेंटेन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे योर जेनेटिक्स, आपके जीन्स, योर लाइफस्टाइल, योर स्लीपिंग पैटर्न. अगर ये सारी चीज़, एंड कभी कभी क्या होता है डॉक्टर कि ये हमारी हाथ में नहीं होते. जेनेटिक्स ऑब्वियसली इज नॉट इन योर हैंड. मेटाबॉलिज्म आपके हाथ में नहीं है. स्लीप इज इन योर हैंड, बट अगेन इफ योर वर्क डिमांड्स अ सर्टेन रूटीन लाइफस्टाइल, इट विल गो ऑन टॉस. ऑब्वियसली. सो मेंटेनिंग अ वेट आफ्टर वेट लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और बहुत सिंपल है, एक मेंटेनेंस डाइट होता है जो आपको 3 महीने के लिए करना होता है. वंस यू फील कि आप आपके आइडियल वेट के पास आ गए हो. आइडियल वेट आप हमें पता लगता है आपके एज से, आपके हाइट से और आपके करंट वेट से. सो वंस यू BMI, जब आपको आपके BMI से आपका आइडियल वेट मिल जाता है, यू नो कि आपको अभी मेंटेनेंस डाइट करना है. मेंटेनेंस डाइट क्या होता है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सो बेसिकली मेंटेनेंस डाइट में हम आपको सारी चीज़ें जो भी हाई कैलोरी भी हो रही है
इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, हम आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में देते हैं टू सी हाउ योर बॉडी इज अडेप्टिंग टू इट. उसको वापस उसकी हैबिट हम दिलाते हैं कि नाउ व्हाट इफ आई गिव यू 3 रोटीज, इफ आई रिड्यूस अ लिटिल बिट ऑफ फाइबर, but the fundamental of the diet remains the same. Okay. The protein will be higher, fiber will be higher, carb will be in moderation. बट थोड़ा ट्रायल एंड एरर बेसिकली Yes. चलेगा until the body gets used to the new diet also कि बीच बीच में ओकेजनली कुछ खा लिया तो क्या होगा. ऑल्सो इंडिया में डाइट शुरू होने से पहले कोई ना कोई ओकेजन, फेस्टिवल, किसी की शादी, किसी का कोई ना कोई सोशल इवेंट आ ही जाता है. Correct. तो जब डाइट करते हैं तो ये सारे सोशल इवेंट्स में क्या ध्यान में रखना चाहिए इवन इफ़ यू आर ऑन अ डाइट. तो कितना मॉडरेशन में खा सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए या सोशल इवेंट्स कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू? So, I'm a nutritionist who ensures and मैं encourage करती हूँ लोगों को कि आप हफ्ते में 2 बार डार्क चॉकलेट भी खाओ. I tell my clients कि आपको हफ्ते में 1 या 2 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट खाना है, आपका चीट करना है. उसका रीज़न है कि गिवन हमारे डे एंड एज, सोशलाइजिंग, किड्स एंड यंग पीपल गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स एंड ईटिंग, ये नॉर्मल ट्रेंड है. तो अगर मैं बोलूँ कि आपको 6 महीना बिल्कुल बाहर का नहीं खाना है, आप मुझे ब्लॉक कर दोगे. आप बोलोगे कि ये बहुत रॉन्ग है. हाँ. बट येस, हम इससे कैसे डाइवर्ट होके, डॉज करके हम कैसे एक हेल्दी खाना खा सकते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ. सो से फॉर एग्जाम्पल आज रात को आपको किधर डिनर, शादी रिसेप्शन में जाना है, ठीक है. तो what I always tell my clients that is what I'm going to share. So because आपकी एक मील जो है वो बाहर का रहने वाला है. So say for roughly around, मैंने आपकी मील प्लान में 350 to 500 किलो कैलोरीज का एक मील प्लान किया है वो पर्टिकुलर डिनर के लिए. तो वो मुझे डेफिनेटली अंदाज़ा है कि आप 1000 कैलोरीज खाओगे, विच विल बी 2x ऑफ व्हाट आई हैव प्रिस्क्राइब्ड. अभी मुझे वो कहाँ से 1000 कैलोरीज निकालनी है आपके डे में से, राइट. सो व्हाट आई विल टेल यू कि लेट्स ट्राई टू स्किप योर रोटी या राइस फॉर लंच. तो आप लंच में सिर्फ सॉटे वेजिटेबल्स ले विद पनीर, तो आपको फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, एंड मे बी देन हैव अ ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस या वेजिटेबल सूप, अगेन वेरी लाइट ऑन योर स्टमक. अगर बोलो नहीं मुझे तो कुछ खाना पड़ेगा, देन यू कैन हैव अ मूंग दाल का चीला, यू कैन हैव ओट्स का चीला, बेसन का चीला. यू कैन पेयर दैट फॉर इंस्टेड ऑफ योर मील, एंड देन अगेन गो जाने से पहले ट्राई टू हैव एन एप्पल साइडर विनेगर शॉट, ट्राई टू हैव अ ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस, चिया सीड वाटर. इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. दूसरा मेन चीज़, अगर आप कभी भी डिनर पे जाते हो या फिर शादी में जाते हो, सी द सैलेड्स एंड ऑल बहुत टाइम से कट करके वो लोग रखते हैं. वी डोंट नो कि वो 12-13 घंटे पहले भी कट करके रखते हैं. सेकेंडली, अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इंडिया में वैसा कल्चर नहीं है अभी भी कि हम सैलेड ऑर्डर करें हमारे खाने के साथ. नाउ इमेजिन ऑर्डरिंग अ पाव भाजी के साथ सैलेड. Who would eat it? No one would. Right? So it's rather better कि आप वो फाइबर घर से खा के जाओ and then enjoy your पाव भाजी with less butter and restricted amount of पाव. Okay. पाव भी मसाला पाव और एक्स्ट्रा बटर मार के नहीं खाना है. See what Basic. I always tell, जब भी मैं ये मेरा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मैं कभी भी बॉम्बे में किधर भी ऑर्डर करती हूँ, मैं बोलती हूँ प्लीज बटर ऑयल मत लगाना, मुझे कोलेस्ट्रॉल है. That's what I tell, and the person who's taking my order, he look at me like आपको कोलेस्ट्रॉल है, like are you sure? But when you say this, they actually don't put any butter or oil. Okay. That's my phase whenever I go, and then if I go with my parents or my in-laws, they're like, you are not eating, but let us eat, let our food be tasty. So now all of us have got into this habit, like whenever they go, even if they're ordering a dosa, they will be like, no butter, no oil. Ghee hai, okay, then what kind of ghee it is? Because usually again, there are so many, dalta and processed, refined ghee that you don't want your body to have. कितना खा सकते हैं घी? 2 to 3 tablespoons in a day. और कौन से टाइप का घी खाना चाहिए? Cow's milk is the best. If it's single origin, मतलब वो एक ही फार्म, एक ही डेयरी से आ रहा है. So dairy milk are good, dairy ghee are good, contrary to the belief, because वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है फार्म से. अगर आप कोई भी पैकेज लेते हो थैली वाला में, वो उसके फैक्ट्री में जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर आपको मिलेगा. तो वो प्रोसेसिंग में बेसिकली पूरे न्यूट्रिएंट वैल्यू भी चला जाएगा. और हम एक्चुअली आई थिंक 2 स्पून से तो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं इंडियन डाइट में, रोटी पे लगा के सब कुछ. करें उसको मॉडरेशन में करना चाहिए या चलेगा वो? See, I honestly feel ghee are really good because it's good fats. If it's coming from cows या फिर मक्खन जो बटर बोलता है, white butter, it's again very good because it's coming from a
गुड काइंड ऑफ फैट्स, ओमेगा 3 जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, स्पेशली इफ यू आर अ वेजिटेरियन. बट अगेन अगर आप से फॉर एग्जाम्पल रोटी या दाल चावल में डाल रहे हो घी, आपको करना चाहिए. इट्स वेरी गुड फॉर योर गट, इट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इट विल कीप योर डाइजेस्टिव लाइनिंग स्ट्रॉन्ग. Okay, cool. Now, one more thing that is also going around, kind of trending, वो I think ये western thing ही है जो अभी इंडिया में थोड़ा थोड़ा आने लगी, is biohacking. Yeah. So, what exactly is biohacking in terms of nutrition and diet? Okay, so this is a very very insightful topic. Biohacking क्या है? So basically biohacking are small lifestyle changes, छोटे छोटे lifestyle changes apart from exercise और diet, जो हम हमारी बॉडी को ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स एक्सपीरियंस कराता है. अगर मैं उसको और ब्रेक डाउन करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो से फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते ही, स्पेशली हमारे मेजर सिटीज़ बॉम्बे, दिल्ली, हम फटाफट उठते ही चाय पी के वी आर ऑफ टू ऑफिस. दैट्स हाउ वी आर मेंट, वी आर ट्यून्ड. बायो हैकिंग ऐसा बोलता है कि सुबह उठ के 10-15 मिनट आप सिर्फ सन में एक्सपोज हो खुद को. पॉसिबल है तो अर्थिंग करो. अर्थिंग क्या है कि वॉक ऑन द ग्रास और गार्डन बेयर फीट. सो दैट काइंड ऑफ अलाइंस योर चक्रास. वो हमारे सर्कैडियन रिदम को ठीक करता है. Okay. बिकॉज वो प्रोसेस में हमारे हार्मोन्स ठीक होता है, उससे हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारा मूड एनहांस होता है. सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ बायो हैकिंग. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बायो हैकिंग इज मील सीक्वेंसिंग. Eating your meal in a particular sequence. So say for example, taking an Indian diet example, कि रोटी सब्जी दाल चावल, buttermilk curd. That is what comprises of our Indian thali. So eating that Indian thali in a pattern जिससे हमारा weight maintain रहेगा. क्यों maintain रहेगा? क्योंकि हमारा blood glucose spike नहीं होगा. Okay. So that is what is biohacking, that you are eating, you're following a normal routine, but because of all those, you are hacking your body to not only reverse age but increase your lifespan, longevity in a healthy way. Okay. What can you give me an example कि एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल कि एक आइडियल डाइट वो क्या फॉलो कर सकता है कि सुबह उठा डाइट एंड काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आल्सो कि वो सुबह उठे बाहर गए क्या खाया फर्स्ट थिंग व्हाट शुड दे ईट इन टर्म्स ऑफ बायो हैकिंग. ओके, सो अगेन बायो हैकिंग का कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है. ठीक है, बायो हैकिंग लाइक आई सेड कि स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस. तो आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हो आप डाइट फॉलो कीजिए. अभी उसमें बायो हैकिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक्सपोजिंग योरसेल्फ इन द सन, अर्थिंग, ठीक है, मील सीक्वेंसिंग. देन बायो हैकिंग टॉक्स अ लॉट अबाउट स्लीपिंग योर स्लीप cycle, because so Brian Johnson, he is called as the father of biohacking. So basically वो अभी 55 years के हैं, and उन्होंने ये सारे biohacks करके currently his age is of a 25-year-old. Wow. Yeah, and if you look at the images, if you look at his photos, वो recently अभी इंडिया भी visit किए थे, he wanted to promote biohacking, things like that. So if you look at him, you will feel that oh my god, like he doesn't look real because his skin is so like a Korean skin. He works out, so he only eats 4 hours in a day. वो सिर्फ 4 घंटा खाना खाता है, वो दिन में 35 सप्लीमेंट्स से ज़्यादा लेता है. Okay. So that's a little extreme because he's trying to experiment उनके खुद के बॉडी से. बट करंटली वो खुद एक ब्लूप्रिंट रोज रिलीज करता है कि वो उन्होंने क्या किया पूरे दिन में, और वो उनके वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है सबके लिए. Okay, what is the name of the website? brianjohnson.com उनकी खुद की वेबसाइट है, और वो एवरी डे वो फ्री अपडेट करता है कि उनकी ब्लूप्रिंट क्या है. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वो ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द रिसर्च, तो वो उनके लिए थोड़ा इन्वेजिव बायो हैकिंग हो जाता है. इन्वेजिव मतलब उन्होंने खुद के सन का ब्लड अपने में इंजेक्ट किया है टू काइंड ऑफ हेल्प ऑल दैट यू नो द केमिकल्स एंड ऑल द ब्लड वाइटल्स वर्क. So it's a invasive technique also, but in India, like we commonly do the non-invasive one, the thing that we can do which are for free. Okay. Exposing in the sunlight is free. Sleeping on time is free. Now there's entire culture of also sound healing. आपने देखा रहेगा बहुत सारे sound healers अभी हैं. So all that is adapting your lifestyle, adapting in your lifestyle to see how your body is reacting is biohacking. बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच रखना है कि सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं बट
overall, like say stress Yeah. levels, sleeping patterns, and how much you're connected to the nature also makes a lot of difference. So Correct. that helps. Also, since you are talking about this, stress levels के वजह से food absorption में, nutrient absorption में क्या difference आता है? या ओके सो स्ट्रेस बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज क्योंकि पहले के टाइम पे बोथ मेल या फीमेल को इतना स्ट्रेस का सिनारियो नहीं था सो एक एग्जांपल अगेन दूंगी सो अ 27-year-old क्लाइंट ऑफ माइन वर्कड इन 3 months बैक इनटू माय क्लिनिक स्टेटिंग कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है जब मैंने डीप डाइव किया तो मुझे पता लगा कि वो वर्कआउट कर रही थी वो दिन में 10 से 12,000 स्टेप्स चल रही थी फिजिकली बहुत फिट थी मेजरली उनका स्लीप पैटर्न पूरा अपसेट था क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी बिकॉज ऑफ हर ऑफिस कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर सो दैट इज़ वॉट मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा साइंटिफिक वे में और वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाउ कैन स्ट्रेस इम्पैक्ट वेट एंड ओवरऑल फिटनेस सो जब भी हम स्ट्रेस करते हैं कोई भी चीज़ के लिए फैमिली इमोशनली वॉटेवर अगर किसी चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है और वो सिग्नल से हंगर हार्मोन सिक्रेट होता है ओके हंगर हार्मोन सिक्रेट होने से क्या होता है हमें फील होता है कि मुझे भूख लग रही है जबकि आप भूख नहीं लग रही है वो सिर्फ बॉडी का एक सिग्नल है आपको बताने का यू आर इन स्ट्रेस सो समटाइम्स मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी ये हो रहा है ट्राई टू जस्ट वॉक फॉर 2 minutes ट्राई टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर देन आप खुद डिसाइड करो कि या तो आपको सच में भूख लग रही है या फिर इज जस्ट यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस भी करते हो ना वो आपकी बॉडी को वेट लॉस नहीं करने देगा उसका रीज़न है कि आपको स्ट्रेस होगा आपका हंगर हार्मोन रिलीज होगा और आप कुछ खाओगे apart from what you are supposed to eat. Usually people, females, stress after eating dinner. वो एक नॉर्मल जब होता है हम पूरे दिन का you're done with your household chores, right? आप रिलैक्स कर रहे हो आपके पास कुछ काम नहीं तब आपको स्ट्रेस ट्रिगर होता है and that is what is binge eating also. So binge eating is nothing but you're stressing about something, some external situation which is causing you to overeat. Basically we just have to be mindful and not succumb to emotional eating. Yes. तो आराम से जितना भूख लगी उतना ही खाना है Absolutely. एक्स्ट्रा नहीं खाना Being mindful again, eating mindfully is again a thing, is a biohack. To ask yourself, अगर आपको कभी भी बिंज करने का मन हो रहा है खुद को पूछो कि आप क्या पूरा कटोरी दाल चावल रोटी सब्जी खा पाओगे you will be like no I don't want to eat that so that is a sign कि you are just stressing about something you just need a glass of water walk for 5 minutes and आप ठीक हो जाओगे so since we are talking about mindful eating हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए when we are thinking about mindful eating जैसे आपने पहला बोला कि क्या मैं ये पूरा खा सकता हूँ what are the other questions that we should ask ourselves before eating something okay so एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने राइन के ब्लूप्रिंट में देखी वो बहुत इनकरेज करते हैं कि जब भी हमें ऐसी सब सिचुएशन होती है अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हो यू नो यू आर इन एन ऑफिस मीटिंग और समथिंग यू कांट वॉक write down your thoughts just for 5 minutes 5 sentences you know and then you will understand you know what is just it's in my head तो आप ये कर सकते हो take do deep breathing deep breathing really helps you क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन हमारा रेगुलराइज करेगा वो हमारे ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एंड इट विल हेल्प यू काम डाउन अ लिटिल बिट सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू एडिशनली ओके ऑल्सो आई थिंक वी शुड कंसिडर कि अगर मैं पूरा खा लूँगा तो मुझे कैसा फील होगा हाउ विल माई बॉडी फील विल आई फील हैवी एंड आई फील लॉट ऑफ अस आर नाउ अवेयर के ये खाने के बाद मुझे बहुत हैवी फील होता है तो we should avoid those things when we are thinking about having something particular. Okay, अभी बहुत सारे लोग जो है ना डाइट फॉलो करते हैं लाइक स्ट्रेस वगैरह भी नहीं है दे आर काइंड ऑफ कटिंग डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ फूड दे आर ईटिंग कैलोरी डेफिसिट बोल दो या फिर पोर्शन साइज कटिंग बोल दो वो करते हैं बट फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता बिकॉज मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है okay. तो वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए in terms of should we eat something or should we eat something in a particular
ऑर्डर के पहले ये खा लिया वो खा लिया, उसके बाद मैं मील खाऊंगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट कर सकता है इंसान? ओके, सो फ्यू इजी टिप्स मैं दे सकती हूँ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो ट्राई कीजिए दैट यू आर स्टेइंग हाइड्रेटेड। वाटर विल हेल्प यू लूज वेट। फन फैक्ट कि हमारा ऑब्वियसली आवर बॉडी 70% मेड आउट ऑफ वाटर, सो फॉर एवरी 20 kgs ऑफ ह्यूमन वेट यू रिक्वायर 1 liter ऑफ वाटर। ओके, वो आपका रिक्वायरमेंट है, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो अगर आप 100 kgs के हो तो आपको 5 लीटर पानी की जरूरत है, ठीक है। फॉर एवरी 20 kgs 1 liter ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। नाउ फूड्स दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म आर बेरीज, कोई भी बेरीज, ग्रीन टी, हमारे इंडियन स्पाइसेस जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, दे आर ग्रेट टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। जीरा पानी ले सकते हो, सिनेमन पानी ले सकते हो, धनिया जीरा का अगर पाउडर घर पे रेडी है यू कैन टेक दैट। ग्रीन टी like I said is very good to increase your metabolism. Then there are few other physical activities that you can do. Try to walk after 20 minutes of your meal. Usually we have a habit कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले रात को खाने के बाद। सो मैं बोलूँगी कि पूरा 1 घंटा 45 मिनट्स वॉक एक साथ करने से बेटर है। ब्रेक योर वॉक्स, walk for 20 minutes after your major meals for just 15 to 20 minutes. ओके, That will also help you increase your metabolism. and obviously exercise तो है ही this. Yes, exercise, doing 3 to 5 days a week exercise, combination of both strength training and cardio will be very effective. Okay. Now anti-inflammatory diet, what is anti-inflammatory diet and how does it help? Yeah. So अभी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है विद्या बालन का. So she lost a lot of weight with that anti-inflammatory diet. So basically anti-inflammatory diet is nothing but हमारी बॉडी हमारे पूरे दिन में एडिंग फूड्स जो नेचुरली बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करेगा, हॉर्मोन्स को कंट्रोल में लाएगा, एंड इट विल हेल्प योर बॉडी टू गिव अ वेरी टोन्ड इफेक्ट. सो अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और वो हमें एंटी ऑक्सीडेंट्स देता है. लॉट ऑफ बेरीज, ग्रीन टी, herbal water, lot of fresh whole fruits and vegetables, right? Having lean protein. What is lean protein? So lean protein will be obviously plant-based protein. सब आ गया उसमें. All your lentils, right? Having a lot of egg whites. Having lean cut of fish, chicken. Avoiding red meats. Avoiding anything from package. कोई processed foods. Any food that comes with an expiry date आपको नहीं खाना. Not eating carbohydrates, especially roti sabzi for your dinner. Okay. Because उससे naturally आपका bloating कम होगी, inflammation कम होगा. So dinner would usually such diets, dinner would be a big bowl of soup, sauteed vegetables with some sprouts, eggs, tofu. So that is nothing but an anti-inflammatory food diet. Okay. ये सब कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, या यू शुड हैव अ क्राइटेरिया कि मुझे अगर ये मेडिकल कंडीशन है तो मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं कर सकती हूँ, या मेरा गोल ये नहीं है तो मैं नहीं करूँगी? सी ऑनेस्टली आई फील एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का जो ट्रेंड है इट इज़ नॉट अ डाइट पैटर्न, इट इज़ जस्ट फूड्स जो आपके रेगुलर फूड में आप खाने दिन में आप यूज़ कर सकते हो. ओके, राइट, यू कैन जस्ट हैव अ सिनेमन और जिंजर का शॉट इन द मॉर्निंग. सो वो आप आपकी पूरी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हो. अच्छा. इट्स नॉट कि आपको यही करना है. पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है रिलेटेड टू योर हार्ट, रिलेटेड टू डायबिटीज़, ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्पेशली टू मेंटेन योर हार्मोनल हेल्थ ऑल्सो. सो से फॉर एग्जांपल PCOS है या फिर थायराइड है, तो ये आप डाइट सोच सकते हो कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इससे इंक्लूड करूँ. एंड दे आर ऑल इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस, इट्स नथिंग आउटसाइड ऑफ दैट. तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट. ओके. जो हमारे बेसिकली डाइट्स है, डाइट में बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें सूट नहीं करती है, लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है कुछ लोग, तो एक गट हेल्थ का पिक्चर भी आ जाता है. तो एक हेल्दी गट कैसे मैनेज कर सकता है? यू ऑल्सो मेंशन के लोगों को लगता है बर्पिंग और बेल्चिंग बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, बट विच इज़ नॉट. तो हेल्दी गट कैसे रख सकता है? ओके, सो एज पर आयुर्वेदा एंड एज पर इंडियन कल्चर, हमारे बॉडी में जो भी डिजीजेस पैदा होते हैं इट कम्स फ्रॉम योर गट. Okay. So if your gut is healthy, your body will be healthy. And that's a fact. So after practicing for 7 years, 7 साल के बाद मुझे definitely realize हो रहा है जो लोग मेरे पास आते हैं with an gut related issue,
उनको वेट लॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। उसका रीज़न है कि जो भी आप खाना खा रहे हो आपका बॉडी डाइजेस्ट करने वाला है। कभी कभी बिकॉज आपका लीकी गट होता है, और लीकी गट मतलब अगर जो भी आप खाते हो आपका न्यूट्रिएंट्स आपके ऑर्गन्स को नहीं जाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो डायरेक्टली पास आउट हो जाता है वो पूरे सिस्टम से। सो वो लीकी गट होता है। दूसरा है कि हमने हमारा खुद का गट खराब किया बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ पैकेज फूड्स। सो गट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ईजी है। यू कैन लिटरली हेल्प योर गट, स्ट्रेंथन योर गट इन लेस देन 3 to 4 weeks। कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक्स। What are pre and probiotics? I think probiotics तो याकुल्ट वगैरह होता है. Yeah. What are prebiotics? And Okay. actually both. I'll tell you what pre and probiotics are. So probiotics होते हैं जो हमें फर्मेंटेड चीज़ से मिलते हैं, जो कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारे गट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि दही, बटर मिल्क, फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, बैटर, डोसा, थिंग्स लाइक दैट। प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं दैट वी गेट फ्रॉम अनियन, दैट वी गेट फ्रॉम गार्लिक, दैट वी गेट फ्रॉम कीमची, राइट। तो उनमें ऑलरेडी वो न्यूट्रिएंट्स या बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट को हेल्प करते हैं। Okay. फॉर अ हेल्दी गट वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्री एंड प्रोबायोटिक्स। Okay. Yeah. So like a raita thing would help. Yes, a raita would help. You mentioned Yakult. Yakult is very bad for your health. In a very normal tone, if I can tell you, it's bad for your health. I can go on and on about it, but it's bad for your health. Why? One shot of Yakult will give 22 grams of sugar. It's more than the sugar requirement जो आपके पूरे दिन में होनी चाहिए। तो उसमें फर्मेंटेड चीज़ें हैं बट एडिशनल शुगर भी है। Okay. तो वो आपकी हेल्थ को नहीं लेने चाहिए। इनफैक्ट ट्राई टू हैव 1 प्री एंड प्रोबायोटिक हर मील में। जैसे कि आपने लंच में दही ले लिया या बटर मिल्क ले लिया, हाँ. आपने डिनर में थोड़ा किमची ले लिया। सो इवन आचार इज हाँ. अ प्रीबायोटिक। Oh. किमची इज नथिंग बट जापानीज आचार, हाँ. फर्मेंट करके दादी या मम्मी रखती है। हम्म. सो आचार इज अगेन प्रीबायोटिक, बट अगेन इट्स जस्ट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम रिफ्रेन करता है Okay. लेने से। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में कभी कभी हम मूली के पराठे खाता है। इट्स नथिंग बट गोना हेल्प यू गट fix any problems. Oh. Now we have a segment called a 30-day challenge. So if you can give a challenge to our audience where they can follow very easy things in terms of diet and nutrition so that they can become healthier individuals. Lovely. I love giving such healthy, So, 5 things that I also swear by. So, how I practice holistic approaches. मैं उनको टेम्पलेट वाइज वी वर्क ऑन इट कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो मैं वही आपको शेयर करती हूँ। सो वन लाइफस्टाइल, एंड ये जस्ट मैंने अभी क्लाइंट से मैं आते आते मैं बात कर रही थी तो मैं आपको बता रही हूँ। सो वन लाइफस्टाइल चेंज दैट आई आस्क्ड हर टू डू वाज टू ईट 2 raw vegetables every single day. Okay. राइट, वेरी सिंपल। 1 फॉर लंच, 1 फॉर डिनर। बट जैसे मैंने बताया लंच और डिनर रोटी के साथ नहीं खाना है, पहले वो खा लो। उसके बाद आप मेन कोर्स में। मेन कोर्स आपका, अगर आप साउथ इंडिया से हो तो रसम, राइस, वड़ा, वट एवर, बट फर्स्ट यू ईट दैट वेज। सेकेंड थिंग आई वुड से दैट ट्राई टू कंप्लीट 1 hour ऑफ वॉकिंग एवरी सिंगल डे। Okay. अभी आपके पेस के ऊपर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही आपको 10,000 स्टेप्स ही करना, बट ट्राई टू वॉक फॉर एटलीस्ट 1 hour। आप ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं, राइट। थर्ड वन आई वुड से a goal that will help people also lose weight. Specifically, we'll try to include 2 tablespoons of lemon juice, or even better, apple cider vinegar, 15 minutes before lunch and dinner in 1 glass of water. Okay. Excellent to balance your insulin spike before your meals. Okay. Also enhances your metabolism. Enhances your metabolism amazingly. 2 more things that I personally swear by is trying to do weightlifting at least 3 times in a week. I would recommend all the female after the age of 30-35 to start lifting weights. It's going to be a game changer. And one thing that I'm working on is trying to get 8 hours of sleep sustainably every single day, the same hours, the same time. Okay. Say for example, if I go to bed, sleep at 12, I wake up at 8. So my 12 to 8, I'm trying to maintain that particular window. Okay.
That's great. So I think easy steps, easy Yeah. 5 things to follow, and I think if people follow this, they'll definitely see more results in terms of their health. Absolutely. So yeah, thank you so much, Hina, for joining us. It was a really insightful conversation with you. I'm hoping all our audiences are going to gain a lot of knowledge, and they can probably plan their diet in a better way now. Absolutely. Yeah. It was a pleasure, and thank you so much for having me. Thank you.